السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں. چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. سوال: شیطان کس انسان پر آسانی سے قابو پا لیتا ہے؟ جواب: جاہل انسان پر. سوال: دنیا میں سب سے پہلے کس کا انتقال ہوا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کا. سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام جب بادشاہ بنے ان کی عمر کیا تھی؟ جواب: 13 سال کی عمر میں حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بن گئے. سوال: ارکان اسلام کتنے ہیں؟ جواب: ارکان اسلام 5 ہیں. سوال: کاش میں آج سے 20 برس پہلے مر گئی ہوتی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ الفاظ کس جنگ کے بارے میں کہے؟ جواب: جنگ جمل کے بارے میں. سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے آگ کیسے پیدا کی؟ جواب: پتھروں کی رگڑ سے. سوال: جنگ صفین کتنے دن تک جاری رہی؟ جواب: جنگ صفین 13 دن تک جاری رہی. سوال: ایمان کی کتنی شاخیں ہیں؟ جواب: ایمان کی 60 شاخیں ہیں. سوال: وہ کون سی عظیم ہستی ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر سوار ہو کر بت توڑے؟ جواب: وہ عظیم ہستی حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر سوار ہو کر بت توڑے. سوال: حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کن سے سیکھ کر اذان کا آغاز کیا؟ جواب: حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے سیکھ کر اذان کا آغاز کیا. سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس چیز میں بند کر کے دریا میں بہا دیا گیا تھا؟ جواب:
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا گیا تھا؟ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس آسمان تک گئے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان تک گئے۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک قرآن پاک کی سب سے سخت آیت کون سی ہے؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک قرآن پاک کی سب سے سخت سورۃ النساء آیت نمبر 127 ہے۔ سوال: رمضان میں کون سی چیز پینے سے اور بھی زیادہ پیاس لگتی ہے؟ جواب: رمضان میں سگریٹ پینے سے اور بھی زیادہ پیاس لگتی ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ کہاں گزارا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ اپنی چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں گزارا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ نبوت سے کتنے برس پہلے پیدا ہوئیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ نبوت سے 10 برس پہلے پیدا ہوئیں۔ سوال: شب قدر والے دن سورج کیسا ہوتا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی۔ سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کس آسمان پر ملاقات ہوئی تھی؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی تھی۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام احسام تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ سوال: آسمان پر سب سے پہلے کس فرشتے نے نماز پڑھی؟ جواب: آسمان پر سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھی۔
सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा किस नबी की बहन थी? जवाब: हज़रत सारा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी थी वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बहन थी। सवाल: जन्नती को जन्नत में कितने खादिम मिलेंगे? जवाब: जन्नती को जन्नत में 80,000 खादिम मिलेंगे। सवाल: वो कौन सा मुआवजा है जिसको रोजाना मर्द और औरतें देखते हैं? जवाब: कुरान मजीद है जिसको रोजाना मर्द और औरतें देखते हैं। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का मगज किसको कहा था? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का मगज दुआ को कहा था। सवाल: बादशाहों में सबसे पहले किस बादशाह ने इस्लाम कबूल किया? जवाब: शाह हबशा नजाशी। सवाल: जहन्नुमी जब जहन्नुम में रोएंगे तो उनके आंसू कैसे होंगे? जवाब: रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नमी इस कदर रोएंगे कि अगर इनके आंसू में कश्तियाँ चलाई जाए तो चलने लगे। जहन्नमी खून के आंसू रोएंगे, यानी पानी के आंसू की जगह। इसे हाकिम ने रवायत किया है। सवाल: अल अजीज के मायने क्या हैं? जवाब: अल अजीज के मायने इज्जत वाली किताब है। सवाल: जब मुसलमानों ने हबशे की तरफ हिजरत की तो वहाँ किसकी हुकूमत थी? जवाब: जब मुसलमानों ने हबशे की तरफ हिजरत की तो वहाँ नाजाशी की हुकूमत थी। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा नमाज जुमा की इमामत किस जगह की? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा नमाज जुमा की इमामत बनु सालम में की। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में तबलीग करने के लिए किस सहाबी को भेजा था? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में तबलीग करने के लिए हज़रत मसअब रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा था। सवाल: इस्लामी तारीख में मस्जिद के साथ मीनार सबसे पहले किसने और कहाँ बनवाया? जवाब: इस्लामी तारीख में मस्जिद के साथ मीनार सबसे पहले हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने बसरा की जामा मस्जिद में बनवाया।
सवाल: किस खलीफा राशिद ने मदीना को सैलाब से बचाने के लिए बंद तामीर किया? जवाब: खलीफा राशिद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने मदीना को सैलाब से बचाने के लिए बंद तामीर किया। सवाल: आज सानिया किसको कहते हैं? जवाब: आज सानिया को कौम समूद कहते हैं। सवाल: कौम आद के लोगों का कद क्या था? जवाब: तारीखी किताबों में कौम आद के लोगों का कद 40 हाथ बताया गया है। सवाल: हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम ने जमीन पर सबसे पहले क्या बोया था? जवाब: हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम ने जमीन पर सबसे पहले गंदुम और जौ बोया था। सवाल: जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी और रूह आंखों में पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम की नजर कहाँ पड़ी? जवाब: जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी और रूह आंखों में पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम की नजर जन्नत के फलों पर पड़ी। सवाल: हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से कितनी इंजीलें लिखी गईं? जवाब: हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से 75 इंजीलें लिखी गईं। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतों को गुस्ल देने वाली कौन थी? जवाब: ज़माना नबी में हज़रत उम्मे अतिया औरतों को गुस्ल दिया करती थी जिनका लक़ब गुसाला पड़ गया था, असल नाम नसीबा था। सवाल: कुरान मजीद की कुंजी किसको कहते हैं? जवाब: कुरान मजीद की कुंजी बिस्मिल्लाह को कहते हैं। सवाल: किस नबी का जनाजा आसमान पर उठा लिया गया था? जवाब: हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का जनाजा आसमान पर उठा लिया गया था। सवाल: कौन से नबी थे जिनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया था? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने गुस्ल दिया था। सवाल: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त मदीना में कितनी मसाजिद थीं? जवाब: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के वक्त मदीना में 10 मसाजिद थीं। सवाल: बाग जन्नत के हौद का जिक्र किस सूरत में है?
जवाब, बाग़ जन्नत के हौज़ का जिक्र सूरत कौसर में है। सवाल, क्या रोज़ा बंद करने या खोलने के लिए अज़ान ज़रूरी है? जवाब, जी नहीं, रोज़ा बंद करने का ताल्लुक अज़ान फ़जर से नहीं, सुबह सादिक से पहले खाना पीना बंद करना ज़रूरी है। यूं ही जब ग़ुरूब आफ्ताब का यकीन हो जाए अफ्तार करने में देर नहीं करनी चाहिए। ना सायरन का इंतज़ार कीजिए ना अज़ान का, फ़ौरन कोई चीज़ खा पी लें। सवाल, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुसलमानों में अफ़ज़ल कौन है? जवाब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज हों। सवाल, वो कौन से अंबिया हैं जिनको अल्लाह ने बचपन ही से नबूवत से सरफराज फरमाया? जवाब, दो अंबिया हैं जिनको अल्लाह ने बचपन ही से नबूवत से सरफराज फरमाया, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी हिजरत अफजल है? जवाब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हिजरत अफजल है जिसने बदी को तर्क कर दिया। सवाल, वो कौन से साबित है जिन्होंने जंग में अबू जहल को मार डाला? जवाब, हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जंग में अबू जहल को मार डाला। सवाल, वो कौन से सहाबी थे जिनके शाने पर अबू जहल के बेटे मुकरमा ने तलवार मारी, फिर भी वो उसी हालत में लड़ते रहे, लेकिन हाथ के लटकने की जहमत होती थी, बिलाखिर हाथ को पाँव के नीचे दबाकर खींचा कि हाथ अलग हो गया। जवाब, हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु के शाने पर अबू जहल के बेटे मुकरमा ने तलवार मारी, फिर भी वो उसी हालत में लड़ते रहे, लेकिन हाथ के लटकने की जहमत होती थी, बिलाखिर हाथ को पाँव के नीचे दबाकर खींचा कि हाथ अलग हो गया। सवाल, दोज़ख की आग की हरारत दुनिया की आग से कितनी ज़्यादा होगी? जवाब, दोज़ख की आग की हरारत दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा होगी। सवाल, वो कौन सा बादशाह गुजरा है जो हर साल अपने हाथ से कुरान मजीद लिखता था? जवाब, सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह हर साल अपने हाथ से कुरान मजीद लिखते थे। सवाल, उम्मुल किताब की सूरत को कहा जाता है? जवाब, उम्मुल किताब सूरत फातिहा को कहा जाता है। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पैदाइश के कितने दिन बाद दरिया में बहा दिए गए? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पैदाइश के 3 दिन बाद दरिया में बहा दिए गए।
सवाल: क्या डरावने ख्वाब शैतान की तरफ से होते हैं? जवाब: जी हाँ, डरावने ख्वाब शैतान की तरफ से होते हैं। सवाल: अंसार का लफ्जी मतलब क्या है? जवाब: अंसार का लफ्जी मतलब मददगार यानी मदद करने वाला है। सवाल: नमाज कसूफ की कुल कितनी रकअतें होती हैं? जवाब: नमाज कसूफ की कुल 2 रकअतें होती हैं। सवाल: बताएं कौन से पैगंबर दरख्त में समा गए थे लेकिन लोगों ने आरे से चीर दिया था? जवाब: हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम दरख्त में समा गए थे लेकिन लोगों ने आरे से चीर दिया था। सवाल: परिंदों में सबसे ज्यादा उम्र किस परिंदे की है? जवाब: परिंदों में सबसे ज्यादा उम्र कौवे की है। सवाल: सितारे जमीन से छोटे होते हैं या बड़े? जवाब: सितारे जमीन से बड़े होते हैं, यहाँ तक कि सबसे छोटा सितारा जमीन से 8 गुना बड़ा है और सबसे बड़ा सितारा जमीन से 120 गुना बड़ा होता है। सवाल: हजरत अवैस करनी ताबी हैं या साबी? जवाब: हजरत अवैस करनी ताबी हैं। सवाल: वो कौन सी औरत है जिसने सबसे पहले जरा पहनी? जवाब: हजरत हाजरा हैं, इन्होंने हजरत सारा के पहचानने के खौफ से जरा पहनी। सवाल: किस दिन की दुआ सबसे बेहतर है? जवाब: अरफा के दिन की दुआ सबसे बेहतर है। सवाल: वाक़या करबला में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से नवासे शहीद हुए? जवाब: वाक़या करबला में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए। सवाल: बाबुल रियान जन्नत का दरवाज़ा किन के लिए है? जवाब: बाबुल रियान जन्नत का दरवाज़ा रोज़ेदारों के लिए है। सवाल: सलातुल खौफ किस मौके पर पढ़ी जाती है? जवाब: सलातुल खौफ हालत जंग के मौके पर पढ़ी जाती है।
सवाल, क्या कोई आदमी ऐसा भी है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दस्त खुद नेज़ा मारा हो और इससे वो हलाक हो गया हो? जवाब, हाँ, एक काफिर है जिसका नाम अबी बिन खल्फ है। ग़ज़वा उहद में ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से मारा गया। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वफ़ात से पहले कितने दिन तक बीमार रहे? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वफ़ात से पहले 11 दिन तक बीमार रहे। सवाल, ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के पास कितनी तलवारें थीं? जवाब, ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के पास 8 तलवारें थीं। सवाल, आखिरी 4 सूरतों के अलावा और कौन सी सूरत है जो कुल से शुरू होती है? जवाब, आखिरी 4 सूरतों के अलावा सूरत जिन है जो कुल से शुरू होती है। सवाल, किस खलीफा को कुरान की तिलावत करते हुए शहीद किया गया? जवाब, खलीफा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को कुरान की तिलावत करते हुए शहीद किया गया। सवाल, क्या आप जानते हैं लोग जानवरों की तरह रास्तों पर क्या करेंगे? जवाब, लोग जानवरों की तरह रास्तों पर जिना करेंगे। सवाल, कौन सा लफ्ज़ 3 दिन लगातार पढ़ने से हर मकसद पूरा हो जाता है? जवाब, सूरत मुज़म्मिल को 3 दिन लगातार 41 बार पढ़ने से हर मुराद पूरी होती है। सवाल, रमज़ान में किस वक्त सोने से याददाश्त चली जाती है? जवाब, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि फजर की नमाज के बाद सोने से क्यों मना किया गया है। एक हदीस के मुताबिक जो शख्स फजर की नमाज के बाद सोने का आदी हो तो अल्लाह ताला इसकी याददाश्त को ख़त्म कर देता है, और एक रवायत के मुताबिक इसके लिए हलाल रिज़्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो अक्सर लोग नमाज फजर या फिर रमज़ान में भी सहरी खाने और फजर की नमाज पढ़ने के बाद फ़ौरन सो जाते हैं। तो ऐसा करना दुरुस्त नहीं। अगर सोना ही है तो कम अज़ कम सूरज के तुलू होने का इंतज़ार करना चाहिए। सवाल, इब्लीस ने कितने हजार साल तक अर्श का तवाफ किया? जवाब, इब्लीस ने 14,000 साल तक अर्श का तवाफ किया। सवाल, सबसे पहले अरबी किस इंसान ने बोली थी? जवाब, सबसे पहले अरबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने बोली थी। सवाल, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम किन 2 फनों में माहिर थी?
جواب: حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سنگ تراشی اور فن تعمیر میں ماہر تھی۔ سوال: کیا بیجا سوالات کرنا پسندیدہ عمل ہے؟ جواب: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے بے شک تیری امت مسلسل یہ کہتی رہے گی یہ کیا ہے یہ کیا ہے، یہاں تک کہ وہ یہ بھی کہہ دیں گے کہ یہ تو اللہ ہے جس نے مخلوق کو پیدا فرمایا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔